we have in our studio our next guest, Consul General of India, Apurva Srivastava. Thank you so much, ma'am, for coming. Namaste. It's so good to have you. Thank you for taking time out and making it to our new studio. So you just went through the journey and the cake cutting ceremony. What do you think about this inspiring journey? You know, first of all, thank you for inviting me. It's been really honor. I'm really honored and privileged to be here with all of you today. And you know, I went through the journey with Rajendra ji and Meenakshi ji, and it's wonderful. You know how much you have achieved in last 16 years, from starting from a radio channel to 24/7 TV channel. And in between, you know, Pravasi Awards and Pravasi Directories and, you know, so many other things, you know, marathons. That is the most important contribution of, you know, Pravasi media. And I'm really thankful for you and I wish you all the very best. Yeah. जैसे कि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में यहाँ ब्रैम्पटन में, मिसिसागा में, बील रीजन में, ओवरऑल कनाडा में ही एथनिक डायस्पोरा में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, एथनिक कम्युनिटीज़ में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है और जाहिर है कि लोग अपने जो है घर से भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं, घर की खबरों से भी कनेक्टेड रहना चाहते हैं। तो प्रवासी टीवी 24 आवर न्यूज़ चैनल है जिसमें हम लोकल और बैक होम की न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो किस तरह आपको लगता है कि चेंजेस आए हैं? आपने ऑब्वियसली काफ़ी कंट्रीज़ देखी होंगी, यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ का जो मीडिया है उसमें और बाकी की मीडिया में आपको क्या डिफरेंस लगा? नहीं, देखिए, मुझे अब 1 साल होने वाला है। मैं 31 अगस्त को लास्ट ईयर आई थी, तो मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो डायस्पोरा यहाँ का है वो इतना, एक तो इतना ज़्यादा होगा और इतना ज़्यादा यू नो इन्वॉल्व होगा इंडिया से, जितना एंथुजियाज़म होगा, जिस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं दिवाली के। मतलब फॉर दिवाली आई वेंट टू एटलीस्ट 30 डिफरेंट यू नो इवेंट्स। सो इतना ज़्यादा तो मैंने दिवाली शायद इंडिया में भी नहीं मनाई होगी जितनी मैंने यहाँ मनाई। या कोई भी फेस्टिवल, जैसे ओनम का फेस्टिवल है, आई बीन गिविंग वीडियोज़। अभी पैंडेमिक की वजह से जाना नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी सारा जो इन्वॉल्वमेंट है, तो आई एम रियली वेरी यू नो प्राउड ऑफ द इंडियन डायस्पोरा हियर। 1.6 मिलियन ऑफिशियल फिगर है और 700,000 इंडियन सिटीजन्स यहाँ रहते हैं और काम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा एज अ कंट्री जो वेलकम करता है हमारे इंडियंस को और इतना अपॉर्चुनिटीज़ देता है फॉर देम टू यू नो प्रॉस्पर एंड यू नो डू वट एवर दे वांट टू डू। एंड सेकंड, द इंडियन डायस्पोरा ऑल्सो you know they work so hard and they are in all sectors of the society. I mean in politics में आप देखिए, there are 22 MPs, 4 ministers. अगर आप local politics में देखिए, Ontario में you know 5 MPPs. Many of them are here today. I just met many of them here. So it's a great feeling to have you know a diaspora which is so involved in the country of their अपनी कर्म भूमि और जन्मभूमि दोनों से involved रहना. It's a great thing and I'm really very, it really makes me proud. Yeah, absolutely. No, we are very proud about that as well. And Parvasi has been excelling in print, broadcast, both the platforms actually. So since you are here, I would like to ask you a few questions about the pandemic response. You know, a lot of people are coming from India and going to India from here, right? So everybody has the question, can we go? What's going to happen? So you know, if you could just shed some light on what exactly is being done, what measures are being taken to keep that in mind. Okay, for you know, the consulate here will be responsible for people going from Canada to India. Okay. So coming from India to Canada would be the you know the Canadian embassy. So I'll answer my part of the question. So here you know we have already, as you know, Air India has already started special flights. So till yesterday, today is the 54th flight that we have been sending. Right. You know, with people who want to go to India. एंड उसमें करीब 10,000 लोग वापस जा चुके हैं जी। उसके अलावा एयर कनाडा के साथ हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बबल स्टार्ट किया है जिसमें उनको thrice a week उनको स्पेशल परमिशंस है। दे आर ऑल्सो गोइंग बैक एंड फोर्थ, आई मीन फ्रॉम इंडिया टू सो देन देयर इज यू नो देयर इज लॉट ऑफ चार्टर्ड फ्लाइट विच इज हैपनिंग। फॉर इंस्टेंस इंडिया से स्पाइस जेट आ रही है लोगों को लेके, यू नो कुवैत एयरलाइंस, देयर मेनी चार्टर्ड। बट हमारी जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं वंदे भारत मिशन, तो 54th फ्लाइट आज जा रही है विद इट्स क्रॉस 10,000 पीपल गोइंग बैक फ्रॉम। यहाँ जाने से पहले कोई उनका मेडिकल चेकअप वगैरह किया जाता है प्लेन में बोर्ड करने से पहले या वहाँ पहुँचने के बाद का कुछ ऐसा है कि आपको पता लगता है कि वहाँ पे कैसा रिस्पांस हुआ है? ऑब्वियसली क्वारंटाइन तो सबको करना ही पड़ता है, पर यहाँ फ्लाइट बोर्ड करने से पहले कुछ मेडिकल मेजर्स लिए जा रहे हैं? जी, सबसे पहले तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पे। एयरलाइन पे आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं, पर हमें हमारे उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हमारे वेबसाइट पे आप जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। हम लोग टेम्परेचर चेक करते हैं
और जो जिनका नॉर्मल होता है उन्हीं को वोट करने देते हैं। तो अभी तक मोस्टली सब नॉर्मली गया है। बट यदि आपको क्वारंटाइन नहीं करना है, या क्वारंटाइन जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, दो तरह के क्वारंटाइन है कि पहले एक हफ्ता आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्वारंटाइन करना पड़ता है और उसके बाद एक हफ्ता आप होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन अवॉइड करना है तो आपको यहाँ पे मेडिकल टेस्ट करा के अपलोड करना है एयर सुविधा में। एक वेबसाइट है, उसमें आपको अपलोड करना है, तो आपका जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। आप सीधे घर जाके सीधे क्वारंटाइन कर सकते हैं। तो ये सब डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से हैं और यदि कोई क्वेरी है तो हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। काफ़ी लोग ये भी सवाल डाल रहे हैं कि जैसे उनके जो पासपोर्ट्स हैं वो एक्सपायर हो रखे हैं, तो उनको अगर वो बनवाने हैं या उससे इंडिया वीज़ा से या पासपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड कुछ भी उनके काम हैं वो थोड़ी डिले होते जा रहे हैं या कुछ भी है, तो उससे भी कोई मेजर्स हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ या वी आर डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट? नहीं, देखिए जो डिले हुए हैं वो बेसिकली इसलिए हुए हैं क्योंकि 2 महीने तक जो BLS था वो बंद था बिकॉज ऑफ तो वो पेंडिंग जो थे वो ऑब्वियसली जिन्होंने जस्ट उसके पैंडेमिक के पहले अप्लाई किया होगा उनका तो ऑब्वियसली डिले हो गया है। लेकिन अब हम लोग नॉर्मल आने की सिचुएशन में आ गए हैं। अब हम लोग चूँकि अब जो इमरजेंसी वीज़ा सिचुएशन है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में अलाउड नहीं है, तो हम अगर कोई रियली इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप हमें लिखिए, तो हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे, तो फिर हम सेम डे कर देते हैं, उससे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें सेम डे भी मिल जाता है, तो इट्स एक्चुअली गेटिंग बैक टू नॉर्मल। इट्स ग्रेजुअली गेटिंग बैक टू नॉर्मल, not yet of course, but it will I think by September it should be back to normal. So that is a good news for all the people who want to travel back to India, that the things are getting back, the operations are getting back to normal, and the in-consulate is working really hard to get your files processed. Or we're looking forward the things will get more better because Diwali is coming, and we need to have a little bit more celebrations, and with COVID thing going on, I hope कि हम लोग थोड़ा सा और इन्वॉल्व हो सकें। तो मुझे बताइए कि इस साल दिवाली वगैरह पे कोई कौंसल जनरल में होने वाले हैं, कॉन्सुलेट में कोई फंक्शंस वगैरह, या कीपिंग इट लो एट दिस टाइम? वी आर कीपिंग इट लो, क्योंकि जो सबसे बड़ा हमारा जो सेलिब्रेशंस होता है इंडिपेंडेंस डे, जो हमारे जो इंडिया डे परेड होती थी पैनोरमा, वो हमें नहीं करनी पड़ी, लेकिन उसको हम लोग ने डिफरेंट वे से सेलिब्रेट किया। हमने नायग्रा फॉल को ट्राई कलर इल्यूमिनेट हुआ, CN टावर वाज इल्यूमिनेटेड इन ट्राई कलर्स। तो हम और भी जो जैसे पैनोरमा इंडिया परेड्स को उसको हमने डिजिटल करा, काफ़ी चीज़ें डिजिटल करी। ब्रैम्पटन में भी प्लांटेड 74 trees with social distancing। तो जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से ही सेलिब्रेट करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या we'll go by government rules and regulations entirely. Yeah, for the National Event, Republic Day is going to be the next year. So hopefully by 2021 we'll have a little bit much better situation, because I know people are very patriotic here, और मतलब पूरा धूमधाम से वो मतलब कि parade होती है, कोई भी national level का यहाँ पे ceremony होती है, they participate and they look forward to the panorama event as well. And I also want to thank you once again for coming to Parvasi Studios, looking at the new Parvasi TV studio, and I really look forward to seeing you more here with more information, more news, more gossip, and a little bit more new policies for people who are coming from India. And thank you so much once again. Thank you so much. I look forward to coming here regularly. Absolutely. Thank you. Thank you. Namaskar. Namaste.